We learned the difference between accounting cost and economic cost in yesterday's lectures. Accounting cost are the cost for which the entrepreneur actually makes the payment in the cash. They are the contractual in the nature and they are recorded in the books of accounts. Okay. However, accounting cost does not consider the implicit cost, that is opportunity cost. The entrepreneur brings his own resources in the production activity of the business, and for which, right, the cost is not considered in the accounting cost. And if we consider that cost as well along with the accounting cost, it becomes economic cost. So accounting cost, also called as explicit cost plus implicit cost, right, or opportunity cost, is economic cost. Implicit cost or implied cost is the cost of self-owned resources of the entrepreneur. Entrepreneur gives capital to the business, interest on that capital. Entrepreneur gives his time and skill to the business, remuneration for that. He may give his personal assets to the business, maybe the remuneration of those personal assets, right? Maybe in the form of rent, etc. Those should be considered for the purpose of calculation of, right, economic cost. Sometimes the family members of the entrepreneurs takes part in that, right, production activity जिनका payment होता नहीं. In that case, right, if we consider their wages as well, then we will get economic cost, right? Accounting में वो भी consider करो तो आपको economic cost मिलेगी. So economic cost is broader than the accounting cost. Accounting cost is a subset of the economic cost. So accounting cost will be always less than economic cost if there is an implied cost or opportunity cost. Generally they are, right, different because difference between them is an implied cost or opportunity cost. This is the first thing. Then we understood whenever we take the decisions, we consider economic cost, right, for the purpose of taking the decision. If business is recovering explicit as well as implicit cost, accounting as well as opportunity cost, means business is recovering entire economic cost. I will say, right, business is performing really good if the economic profit, which is total revenue minus economic cost, economic profit के लिए economic cost minus करो, accounting profit के लिए accounting cost minus करो. So if economic profit is a positive, that is called as super normal profit or abnormal profit या positive economic profit. It is a situation where the business is recovering the entire cost, accounting cost, cost of the third parties, सेल फोन रिसोर्सेस की भी कॉस्ट, राइट, एंटरप्रेन्योर की खुद की कॉस्ट, एंड मोर ओवर देयर इज अ प्रॉफिट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो positive economic profits is when total revenue is more than economic cost. Answer is positive profit. Zero economic profit means when business recovers just economic cost, means its revenue is exactly equal to economic cost. That is called as normal profit. When we say a firm earns normal profit, means zero economic profit. Also a good firm because they are recovering the costs of the resources given by third parties, at the same time cost of the resources given by the entrepreneur. So zero economic profits, normal profits, right, are, right, profits where economic cost is equal to your total revenue. If firm is suffering from the negative economic profit, means the firm is not recovering the entire economic profit, entire economic cost. Such situation is called as negative economic profits or losses. Firm is said to be in losses. So हम इकोनॉमिक्स में जब भी प्रॉफिट की बात करते हैं या जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, जो पूरा चैप्टर कॉस्ट है, मार्केट में भी कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कॉस्ट.
आगे से जो भी वर्ड कॉस्ट रहेगा दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, एंड जो भी वर्ड प्रॉफिट रहेगा इट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट. प्रॉफिट आफ्टर रिकवरिंग इकोनॉमिक cost. Then there is a difference, and we understood one or two examples. Basically, accounting cost जो हम P&L में डालते हैं वो, and economic like implicit cost जिसके accounting होती नहीं because उनका actual contractual payment नहीं होता है. There is no obligation to make the payment of those resources. ठीक है? So that is the difference between accounting cost and economic cost. Clear है? Accounting cost plus opportunity cost is economic cost. Total revenue minus accounting cost is accounting profit. Total revenue minus economic cost is economic profit. Accounting profit will be always greater than economic profit. Accounting profit will be always greater than economic profit if there is a implicit cost. And obviously implicit cost हमेशा रहेगी. Implicit cost मतलब opportunity cost हमेशा रहेगी. ठीक है? So you should understood that. Then the next concept of the cost is outlay cost versus opportunity cost. लिख लेना. Outlay cost versus opportunity cost. Outlay cost versus opportunity cost. Outlay cost means the cost that you have actually paid for. You have incurred that cost. Yet there is the obligation to incur that cost. Like loan लिया तो interest pay करना पड़ेगा. The payments made by the firm or to be made by the firm as per contracts, like salary paid, advertisement expenses paid, R&D expenses paid, goods purchased, machineries purchased, all those are outlay cost. You have decided to do one activity, एक अपनी activity decide की है to produce the goods and services, to sell those goods and services. ये activity आपने decide की है. उस activity के लिए जो भी आपने cost incur किए हैं उनको बोला जाएगा outlay cost. On the contrary, opportunity cost is the cost, right, of the next best alternative foregone. Example, as we know, human wants are unlimited, but resources to satisfy those wants are limited. And moreover, those resources have alternative uses. I have a plot of land. I have minimum two options. I can use in a farming, or I can construct a factory and I will start producing goods and services. So if I opt for the farming, then जो मैं what is the opportunity cost? Farming मैंने decide किया कि I will go for the farming. So cost related to the farmings, right? जो भी equipment से वो purchase किए, raw material purchase किया, labor का payment किया, जो भी packing charge होगा, जो भी रहेगा, those expenses related to farming is outlay cost. Expenses related to farming that you are incurred, that you will pay, is the outlay cost. On the contrary, if you are not opted for the farming, you would have manufactured goods and services and you would have got profit of suppose 5 lakhs. Just you are opted for the farming, you are sacrificed the another option, producing goods and services, उससे आपको net 5 lakhs मिलता. So जो farming आपने select किया है उसके लिए आपने 5 lakhs का profit sacrifice किया है. So that sacrifice cost of the producing goods and services, that 5 lakhs आपने sacrifice किया, that becomes the cost. That is the opportunity cost. So जब भी आप एक activity करते हो, इसका मतलब आपने एक activity sacrifice की होगी, because every resource has alternative uses. Every resource has alternative uses. When you are decided to choose one, उसके related expenses रहेंगे outlay cost. And वो जब आपने choose किया है, तब आपने दूसरा ऑप्शन गिव अप किया है, छोड़ दिया है. उस जो आपने गिव अप किया है उससे आपको कितना मिलता
वो आपने सैक्रिफाइस किया है, दैट बिकम्स योर कॉस्ट. एग्जाम्पल देता हूं, राइट. एग्जाम्पल, आपके पास आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंट, कल भी ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, योर ऑप्शन, you can start your practice own practice, and दूसरा ऑप्शन है you can take up the employment. The profit from the practice is example 20 lakhs. In the first year it is 20 lakhs example, and from the employment it is, suppose your yearly package is suppose 15 lakhs. So this is your net profit, this is your salary, net salary. ठीक है. So if you choose to do practice, so to earn 20 lakhs, you have sacrificed 15 lakhs. So 20 lakhs की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 15 लाख. और if you go for the employment, to earn 15 lakhs, you have sacrificed 20 lakhs. So these are the two best alternatives available after passing out. Suppose ये दो best alternatives है. Obviously you have to take up the best alternatives, best equal alternatives. So when I go for the practice, तो मेरा रेंट रहेगा, मेरे इधर आर्टिकल्स रहेंगे, उनकी सैलरी या स्टाइपेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेट्रा. लाइक फिक्स एसेट परचेस किए होंगे, उनका डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा becomes outlay cost. That becomes outlay cost. And outlay cost प्रॉफिट निकालने के लिए यूज की जाएगी, एंड वो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा. आउटले कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट बोला तो भी चल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता. आउटले कॉस्ट इज लाइक अकाउंटिंग कॉस्ट. ठीक है. एंड आपने ये 15 lakhs गिव अप किया है, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो जॉब कर सकते हो. आपने प्रैक्टिस का ऑप्शन चूज किया, इसका मतलब यू हैव गिवन अ 15 lakhs. दैट अल्टीमेटली बिकम्स योर कॉस्ट. एक्चुअली यू आर नॉट पेड फॉर इट, आपने पेड नहीं किया, आपने कैश निकाल के नहीं दिया, but indirectly that cost has come into picture. Your sacrifice, cost of sacrifice is a opportunity given up. So this is your opportunity cost. ये opportunity cost होगी, opportunity cost, and this becomes outlay cost. So आपने जो ऑप्शन चूज किया है उसके कॉस्ट आउटले बन जाएंगे, एंड जो ऑप्शन आपने गिव अप किया है, दैट उसके जो रेवेन्यू मिल जाता है आपको, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एग्जाम्पल, दिस इज मेनी टाइम्स सेड दैट इन इनिशियल पीरियड, जब बॉलीवुड में सलमान खान एंड आमिर खान ने बहुत सारे मूवीज रिजेक्ट किए, and those movies were later on offered to Shah Rukh Khan, and Shah Rukh Khan became a legend, yeah, like Badshah of the Bollywood. So try to understand, इन लोगों ने जो मूवीज छोड़े और उन्होंने कोई ऐसे मूवीज किए जो इतने चले नहीं. So अगर उन्होंने वो मूवीज लिए होते तो they would have become like, they are also big stars, but शाहरुख became earlier, बाद में सलमान, फिर आमिर, ऐसे एक स्टेप वाइज चला. इन लोगों ने जो मूवीज छोड़े, ये उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. समझ में आ रहा है? सो फॉर एवरी अल्टरनेटिव चूजर देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एवरी रिसोर्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग वी शुड आल्सो कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर आप बोलते हो मेरा प्रॉफिट 20 lakhs का है, आई विल से नो, इट्स नॉट करेक्ट. टू अर्न 20 lakhs यू हैव गिवन अप 15 lakhs. तो एक्चुअली योर प्रॉफिट इज जस्ट 5 lakhs, क्योंकि वैसे भी आपको 15 लाख मिलने वाले ही थे. अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करते तो भी 15 लाख मिलने वाले थे. तो प्रैक्टिस करने से आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, क्या एडिशनल है? सो आई विल से योर एक्चुअल इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट इज जस्ट 5 lakhs. दिस शुड बी आल्सो इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड व्हेनेवर, राइट, we take a decision, we should also consider the opportunity cost involved. Example,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खाली रुपीज में, इट कैन बी टाइम वैल्यू एज वेल. लाइक एग्जांपल, मुझे एक चीज परचेस करनी है, वो मैं पुणे में भी परचेस कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे सिटी में भी जाके परचेस कर सकता हूँ, प्राइस इज द सेम. बट मैं अगर दूसरे सिटी में जाके परचेस करता तो मेरा जो पेट्रोल एक्सपेंस है, जो मेरा टाइम स्पेंड हुआ है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोज यू आर डिसाइडेड टू डू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी. आप 4 साल आपने इन्वेस्ट करना डिसाइड किया है. अगर आप वो 4 साल में कुछ नहीं करते, देन आप कुछ और कर सकते थे, राइट? तो दैट इज योर सैक्रिफाइस, राइट? दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो आपने ट्यूशन फीस पेड की है, उससे आप बाकी भी चीजें कर सकते थे. सो जो बाकी चीजें आपने नहीं करना डिसाइड किया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, इसमें जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कहाँ पे रोजगार हमी पे भी जाके काम कर सकते हो. देयर यू कुड अर्न लाइक 200 पर डे, 500 per day. That sacrifice is the opportunity cost. So मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. Every activity involves opportunity cost. You have, आप रास्ते से चल रहे हो, आपको 2000 की नोट पड़ी हुई मिलती है, आप वो उठाते हो, ठीक है? और बाद में आप उसको 2000 को आप एग्जांपल इन्वेस्ट करते हो, आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, आपने एफडी में डाल दिया, सब ऐसे समझो. उस 2000 से आप मूवी भी देख सकते थे, उस 2000 से आप, राइट, टाइम पास कर सकते थे. आपने वो किया नहीं, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बाकी भी उस 2000 से आप कर सकते थे, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो दोनों दोनों में से एक अल्टरनेटिव में रहती है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दोनों में जो रहेगी वो अपॉर्चुनिटी रहेगी. लाइक आप बोलते सर वो 2000 से हम खाना खाते, वैसे भी यू आर गोइंग, राइट, लाइक फूड दोनों ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा. विदाउट दैट यू कैन नॉट सर्वाइव. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो दोनों में से एक अल्टरनेटिव्स में होती है. दोनों अल्टरनेटिव्स में है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. लाइक एग्जांपल, इस अल्टरनेटिव में 15 लाख है, इसमें भी 15 लाख है, दैट वोंट मेक द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस इज, राइट, द एक्स्ट्रा 5 lakhs. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? outlay cost do not change your decisions. What changes your decision is opportunity cost involved. So in accounting we do not give the weightage to the opportunity cost, but in economics we do give a weightage to the economic, right, your opportunity cost. Then opportunity cost is a cost of best alternative foregone, next best alternative given up. ठीक है? Then second, उसके बाद, अच्छा एक सेकंड मॉड्यूल में देखते हैं क्या है. लेट मी शो यू. अगर थ्योरी है बेसिकली, क्या लिखा है पढ़ो. यस, outlay cost involves actual expenditure of funds. It involves actual expenditure of funds. Okay, right? Say wages, material, rent, interest, etc. Opportunity cost on the other hand is concerned with cost of next best alternative opportunity which was foregone. Cost of next best alternative opportunity which is foregone in order to pursue certain action. Then it is cost of the missed opportunity. Opportunity cost is the cost of missed opportunity and involves comparison between the policy that was chosen and the policy that was rejected. Right? For example, the opportunity cost of using capital is the interest that you would have got from the investment. Distinction between, right, outlay cost and opportunity cost can be drawn on the basis of nature of the sacrifice. Outlay cost involves financial expenditure at some point of time. कभी ना कभी आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, right? Hence are recorded in the books of accounts. इसलिए उनको accounting cost भी बोला जाता है. Opportunity cost is the amount or a subjective value
that is foregone in choosing the one activity over the next best alternative. It relates to sacrificed alternative. It related to sacrifice alternatives. It is in general not recorded in the books of account. Outlay cost is the policy that you have chosen. Opportunity cost is a cost of policy that you have forgone. ठीक है? The opportunity cost concept is generally very useful for the business managers, and therefore it has to be considered whenever resources are scarce and decision involves choice of one of the option over the others. Right? Example. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, वही उसी काइंड का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज शुगर फैक्ट्री है एंड शुगर फैक्ट्री की खुद की राइट शुगर फार्म है. उनका एक लैंड है, वहां पे वो राइट शुगर केन कल्टीवेट करते हैं. ध्यान देना, दे कल्टीवेट शुगर केन ऑन देयर ओन, बाकी लोगों से भी लेते हैं और खुद का भी है. और वो जो शुगर केन है वही वो उनके फैक्ट्री में यूज करते हैं. सो व्हाट इज द, ये जो शुगर केन जो उन्होंने कल्टीवेट किया है वो खुद के बिजनेस में यूज हो रहा है. व्हाट कैन बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर ये कहाँ पे दूसरी जगह पे सेल करता तो कितना मिलता? अगर ये शुगर केन खुद आपने शुगर केन जो आपने कल्टीवेट किया उसके पास दो ऑप्शन है, एक खुद के फैक्ट्री में यूज करो एंड दूसरा ऑप्शन है कहाँ पे सेल करो. What you are decided to use in your own factory. So what is the opportunity given up? You could have sold it to someone else and उससे जो पैसे मिलते हैं that is an opportunity cost of the sugarcane used in your own factory. So ऐसे समझ में आना चाहिए. Then in long term cost calculation, in long term cost calculations also opportunity cost is very useful, right? Then ये एग्जांपल्स दे उन्होंने, दैट्स इट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन या सिंपल वर्ड्स में आउटले कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट. आप ऐसे भी देख सकते हो, अकाउंटिंग कॉस्ट. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट. ऑफ रिसोर्सेस. आगे अब तीसरा सिंपल है. अब डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट लिख लेना. डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट वो इतना हमारे लिए मैटर नहीं करता, बट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट. What do you mean by direct cost? Direct cost are the cost which can be identified directly with a particular product, particular process, particular department, particular activity. Example, जब example एक fan है, this is the fan, ये fan है, right? ये फैन है. अब ये जो फैन है इसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इस फैन के साथ डायरेक्टली क्या है? ये जो ब्लेड्स है, 3 ब्लेड्स, इसकी कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज आई कैन आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि ये जो 3 ब्लेड की कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा इस फैन के लिए. जब मैं इस फैन की प्राइसिंग करूंगा तब मैं 3 ब्लेड्स की कॉस्ट ले लूंगा. कि सपोज एक ब्लेड 200 रुपए का है तो मैं बोलूंगा 600 रुपीज. 3 ब्लेड यूज हो गए. एक फैन में 3 ब्लेड प्लस इसमें ऊपर यहाँ पे मोटर होगी, बराबर ना? उस मोटर की कॉस्ट सपोज दैट इज 1000. आई नो फॉर एवरी 1 फैन रिक्वायर्स 3 ब्लेड्स एंड 1 मोटर, बराबर. फिर उसमें राइट ये रॉड रहेगा एंड दैट रॉड इज सपोज 100. So my direct cost is example 1700. इस पे एक बंदा काम कर रहा है, प्रॉपर एक बंदा काम कर रहा है, उसके वेजेस 300 है. इसी फैन पे वो काम कर रहा है, बाकी कहां पे नहीं. So direct cost become 2000. Direct cost become 2000. So I can identify direct cost with the product.
मैं उसको ढूंढ सकता हूं इस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या लगा होगा एग्जैक्टली, दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। एक एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट में आप, अगर आप एकदम क्लियर देखना है तो उसमें जो ये लगाया होगा आपने, उसका इंटरनल जो चेंज किया होगा, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल मोबाइल ले लो, तो मोबाइल की डायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगी? स्क्रीन कवर, उसकी स्क्रीन, उसमें एक कैमरा रहेगा, उसमें साउंड सिस्टम रहेगी, उसका मदरबोर्ड रहेगा, जो वी कैन एक्चुअली एसोसिएट विद द प्रोडक्ट। बाकी बहुत सारी चीजें रहेंगी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। सो ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट और द प्रोसेस। एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्रीज में, राइट, हमें उनको शुगर केन को हम क्रश करते हैं, क्रशिंग के लिए जो मशीन है उसकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, बिकॉज इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोसेस। सो अगर ऐसे प्रोसेस के साथ एग्जैक्टली आप निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हो, डिपार्टमेंट के साथ कर सकते हो। एग्जाम्पल, देयर इज अ डिपार्टमेंट्स, 4 डिपार्टमेंट है और चारों के अलग अलग मीटर है, लाइट व्हील, इसका मीटर अलग है, इसका मीटर अलग है, इसका मीटर अलग है, इसका मीटर अलग है। सो आई कैन इजीली से कि ये जो 4 अलग अलग मीटर्स है, तो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो आई कैन से जब डिपार्टमेंट ए का बिल आएगा, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट बी का जो रहेगा रिलेटेड टू डिपार्टमेंट बी, सिमिलरली सी एंड डी। सो आई कैन इजीली फाइंड द कॉस्ट, जो हमने कॉस्ट इंकर की है, जो हमने कॉस्ट इंकर की है वो किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, किस प्रोसेस के रिलेटेड है, किस प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड है। इट हैज टू बी स्पेसिफिक, इट हैज टू बी स्पेसिफिक। बट अगर चारों डिपार्टमेंट के लिए एक ही मीटर है, एक ही मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, एंड बिल आ गया सपोज 50,000, हाउ कैन यू से कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है? यू कैन नॉट से। such cost which is a common in the nature, which cannot be directly linked with the particular product, department or process, are called as indirect cost or overheads. Overheads भी बोला जाता है। common cost, एग्जाम्पल, इसका रेंट है एंड एक कॉमन रेंट है, सबका मिला के कॉमन रेंट है, that common rent is called as indirect cost. It cannot be exactly associated with the particular department. एग्जाम्पल, एक कार बन रही है या बस बन रही है, एग्जाम्पल, आई डोंट नो, इसको आप जो बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? इसके पहिए, उसमें जो यूज किया होगा इंजन, मिरर्स, सीट्स, राइट, जो भी आप स्टीयरिंग वगैरह जो भी आप इमेजिन कर सकते हो जो दिखता है हमें, राइट, वो डायरेक्ट कॉस्ट। एट द सेम टाइम देयर वर 2 लेबर्स हु वर वर्किंग ऑन इट, 2 specific laborers who are working on it. That wages of 2 laborers during that period, उनको 4 दिन लगे इस पे काम करने को, तो उनकी कॉस्ट, उनके 4 दिन की लेबर विल बिकम डायरेक्ट कॉस्ट। एंड एट द सेम टाइम ऐसे मल्टीपल लेबर्स काम कर रहे थे अलग अलग कार्स पे या अलग अलग व्हीकल्स पे, ऐसे एक टाइम 1000 व्हीकल्स बन रहे, हर व्हीकल पे 2-2 लोग काम कर रहे हैं, एंड उनको सुपरवाइज करने के लिए एक बंदा बैठा है ना, उसका जो वेजेस रहेगा, उसका वेजेस आई कैन नॉट से दैट इज जस्ट फॉर दिस व्हीकल, हिज वेजेस आर रिलेटेड टू ऑल 1000 व्हीकल्स। ये 2 लोगों का वेजेस इन इसके लिए रिलेटेड है, बट उसके वेजेस इज अ कॉमन फॉर ऑल द आउटपुट, फॉर द कॉमन फॉर द डिपार्टमेंट और प्रोसेस। समझ में आ रहा है? कॉमन कॉस्ट आर कॉल्ड एज इन डायरेक्ट कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट लाइक इसमें, इस आपने उसमें ऑयल डाला होगा, इस फैन में आपने ऑयल डाला होगा, डोंट यू एग्री विथ मी? जो आपने ऑयल डाला होगा वो ऑयल के तो बैरल्स लाके रखे होंगे आपने, जैसे जरूरत है वैसे यूज करते हो। वो ऑयल इज अ कॉमन फॉर ऑल द फैंस। प्रोडक्शन फ्लोर पे जितने सारे फैंस बन रहे हैं उनमें हर एक में वो यूज हो रहा है, समझ, क्लीनिंग के लिए, यूज करने के लिए। तो दैट ऑयल इज कॉमन कॉस्ट। यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि इतना ऑयल इस फैन के लिए यूज हुआ है, कोई फैन के लिए ज्यादा यूज होगा, कोई फैंस के लिए कम यूज हुआ होगा, बट एक बोल सकते हो कि कितने मशीन्स, कितने इंजिन यूज हुए, मशीन्स यूज हो गए।
हर फैन के लिए एक, कितने ब्लेड यूज हुए वो बोल सकते हो, हर फैन के लिए 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सम कॉस्ट व्हिच कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड, can be associated, can be identified with the particular product, particular department or particular production process, उनको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का रेंट, इसका रेंट इज ए डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री, इस फैक्ट्री का वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। बट उसमें जो सारे आउटपुट्स बन रहे, उसमें 1000 कार्स बने सपोज, तो आई कैन नॉट से कि ये रेंट, इसमें से कौन से कार का कितना रेंट है, तो हम बोलते हैं सपोज रेंट इज 1 लाख एंड 10,000 कार्स बने, सो आई कैन से पर कार 10 रुपीज है, रेंट पर कार इज 10 रुपीज, ऐसे हम मानते हैं। हम कॉमन कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड करते हैं, कॉमन कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉमन रेट हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, राइट। इस फैक्ट्री का एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी वेजेस 10,000 है, उसके वेजेस 10,000 है, ही इज अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द फैक्ट्री। जो 10,000 आउटपुट बना है उन सबके सिक्योरिटी के लिए वो है, वो पर्टिकुलर आउटपुट के लिए नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फैक्ट्री के लिए मे भी उसकी कॉस्ट डायरेक्ट रहेगी, बट फॉर द आउटपुट दैट इज इनडायरेक्ट। सो ज्यादा अंदर जाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड लगे। जैसे मैंने कल ही बोला था कि इंटर में यू विल, आपका सब काम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इंटर में आप डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही करोगे सब काम। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज ट्रेसेबल कॉस्ट, व्हाई? बिकॉज they are traced with output, they are traced with activity, process, department, they are traceable, identifiable, and indirect cost are non traceable. Non traceable एग्जाम्पल, एकत्व में एक फैकल्टी एक पर्टिकुलर बैच लेती है, एक पर्टिकुलर आपके बैच में एक पर्टिकुलर फैकल्टी लेक्चर्स लेते हैं, so his salary or his remuneration is a direct cost with related to your batch. But जो office staff है, their salary is not only related to your batch, their salaries are also related to other batches. Their cost cannot be identified with a particular batch. Their cost is indirect cost. Cost है but indirect है। हम उनकी cost अलग अलग बैच में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। Are you getting my point? So that is to be understood. So non-traceable cost, इसको you can say common cost as well. Common cost as well. ठीक है? So this is everyone should understand. So difference between direct cost and indirect cost. Direct cost can be associated with the process, output, or department. Indirect cost are the common cost incurred for the whole output, for whole department, for whole process or the unit itself. ठीक है? Electricity bill is the best example. Rent can be a best example. Salary of the security guard, right? जो रिसेप्शन पे बैठा है, वो एग्जाम्पल, आप किसी मॉल में जाते हो, राइट, जो वहां पे बिलिंग करते हैं, वो बिलिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट करते हैं, राइट। आप कोई भी डिपार्टमेंट से कुछ भी परचेस करो, बिलिंग वाला तो एक ही है। सो हिज सैलरी इज ए कॉमन फॉर होल स्टोर, कॉमन कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? बट अगर एक पर्टिकुलर बंदा है, वो एक डिपार्टमेंट को देखता है, इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन, wages of that person becomes direct. आप थिएटर में जाते हो एंड थिएटर में जाने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक लाइक आप इसमें जा रहे हो, मल्टीप्लेक्स में जा रहे हो, तो क्या बोल रहा है, एक स्क्रीन पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 स्क्रीन है और एक स्क्रीन पे एक मूवी लग रही है, उस स्क्रीन पे वो चलती, तो आई कैन आइडेंटिफाई कि ये जो कॉस्ट है इस स्क्रीन के लिए। बट नॉर्मल, राइट, पार्किंग वगैरह ये सब जो चीजें है, उनके रेंट वगैरह ये सब के लिए, तो दैट बिकम्स योर विच कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो सिंपल है, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, राइट, विद ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोसेस और डिपार्टमेंट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। फॉर माय पर्पस इकोनॉमिक्स में
इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज राइट डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट. नेक्स्ट इज incremental versus sunk. Incremental cost versus sunk cost. Incremental versus sunk cost. Sunk cost is a cost that you are already incurred or you are committed to incur. You have taken the loan, means आपको interest pay करना है, that becomes sunk cost. Sunk cost एक बार incur किए, that does not change your decisions. It will not help you to change the decision. अगर आप वो incur कर बैठे हो. However, incremental costs are used in the decision making. What is incremental cost? One may also relate it with the marginal cost, additional cost, but it is a total cost. Like example, आपको नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, and उस फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए you have to incur 2 crores extra. अभी जो कॉस्ट कर रहे हो उसके बियॉन्ड you have to incur 2 crores extra. So that 2 crores extra becomes incremental cost. So आप देखो फिर डिसाइड करो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा. If revenue generates more than 2 CR, it is better to start with the new factory. But if the revenue is less than 2 CR, don't go for it. So आप क्या डिसाइड करोगे? Incremental revenue versus incremental cost. Incremental revenue and incremental cost compare करोगे. Try to understand. Incremental cost is an additional cost with respect to additional activity. जो कर रहे उसके beyond. एग्जाम्पल अभी आप 1000 लेबर्स के साथ काम कर रहे हो, उनके वेजेस 10 लाख है. नाउ यू वांट एडिशनल 1000 लेबर्स एंड ओवरऑल योर कॉस्ट विल बिकम 12 lakhs. 1000 लेबर्स की कॉस्ट 10 lakhs है एंड यू वांट 100 मोर लेबर्स, योर ओवरऑल कॉस्ट वेजेस विल इंक्रीज टू 12 lakhs. So I will say your incremental cost of hiring additional 100 laborers is 2 lakhs. So incremental cost is an additional cost of expansion, right? आप लोन लेते हो, एडिशनल लोन लेते हो, तो उसका एडिशनल कॉस्ट कितना आएगा? So incremental cost in simple word is a additional cost and compare that with the additional benefit. वो कॉस्ट इंकर करने से एडिशनल बेनिफिट कितना मिल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कितना है और मार्जिनल बेनिफिट कितना है, एडिशनल बेनिफिट कितना है. इफ वो कॉस्ट इंकर करने से बेनिफिट इज मोर देन द एडिशनल कॉस्ट, incremental benefits is more than incremental cost, you can always go for it because it will increase your profit. But your incremental benefit is less than incremental cost, then there is no point in continuing. Are you getting my point? So benefits socho, right? So incremental cost is additional cost that you are planning. Yeah, you आपकी cost change होगी, it can be planned. You can say आप plan कर रहे हो तो आप सोचते हो कितना एडिशनली लगेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी सम कॉस्ट इट इज ऑलरेडी इंकर्ड, आप इंकर कर चुके हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज इंकर्ड, आप पीछे नहीं आ सकते, इट इज इंकर्ड. ठीक है. सो सम कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग. कोई भी डिसीजन लेते हो तो हम सोचते हैं मेरी कॉस्ट कितने से इंक्रीज होगी. कोई भी डिसीजन, सपोज वी डिसाइड टू परचेस ए न्यू राइट क्लासरूम और इफ वी डिसाइडेड टू हायर ए न्यू क्लासरूम, तो हम सोचेंगे मेरी कॉस्ट कितने से इंक्रीज होगी, अभी है उससे कितने से इंक्रीज होगी. जितने से इंक्रीज होगी दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड ऑब्वियसली आई विल कंपेयर विद द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. जब मैं कॉस्ट इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं रेवेन्यू भी मेरा इंक्रीज होना चाहिए. सो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिसीजंस ऐसे ली जाती है. ठीक है. जो मैंने पहले ही परचेस करके रखा है उससे मेरे डिसीजन को कोई इंपैक्ट नहीं होगा. आई हैव ऑलरेडी इंकर्ड दैट कॉस्ट, वो सम कॉस्ट हो चुकी है. मुझे डिसीजन फ्यूचर के लिए लेनी है तो आई विल थिंक कि क्या मेरी कॉस्ट रहेगी. सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग. तो देखते हैं मॉड्यूल में क्या लिखा है. राइट, देखो यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस व्हिच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप with the component of the operations like manufacturing a product, organizing a process or an activity, etc. Since such costs are directly related to product, process or machine, they vary according to the changes occurring in them.
If you produce more fans, you have to buy more blades, you have to buy more machines, you have to buy more rods. So your cost will change according to output. Directly change होगी. Direct cost are the cost that are readily identified and right traceable to a particular product, operation or a plant. Even some of the overheads means हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, बट हम एक बोलते कि इसके लिए यूज हो रहा है. इवन ओवरहेड कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट एज टू डिपार्टमेंट. मे बी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं रहेगा, बट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रहेगा. पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट टू ए प्रोडक्ट लाइन, दैट सेल्स टेरिटरी, कस्टमर क्लास एक्सेट्रा. We must know the purpose of the cost calculation before considering whether it is direct or indirect. Indirect costs are those costs which are not easily or definitely identifiable in relation to plant, product, process or department. Not easily or definitely identifiable in relation to particular plant, product and process. Common cost. Therefore, such costs are not visibly traceable to specific goods, services, operations, but are nevertheless charged to different jobs और प्रोडक्शन इन द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस. भले ही वो कॉस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं है, बट हम उसको प्रोडक्ट कॉस्ट में लेते हैं. लाइक मैंने बोला कि मेरा रेंट 1 लाख था, और उस 1 लाख रेंट में मेरा आउटपुट हुआ है 10,000 व्हीकल्स. सो आई विल से पर व्हीकल इज ₹10. पर व्हीकल इज ₹10. सो भले ही ये कॉमन कॉस्ट है, बट आई विल यूजिंग द आउटपुट, मैं पर यूनिट देखूंगा कितना मेरा कॉस्ट पर यूनिट लगा. आई विल एड इट इन द प्रोडक्ट कॉस्ट. ठीक है, आगे वही उन्होंने लिखा है. हम उसको भले ही हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर सकते, बट एट द एंड वी डिवाइड इट बाय द टोटल आउटपुट एंड वी ब्रिंग इट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. हम पर प्रोडक्ट ढूंढना ट्राई करते हैं. आगे ये कैसे करते हैं, यू विल लर्न इन द इंटर कॉस्टिंग सब्जेक्ट. राइट, वहां पे 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है पूरा इस पे. सो ये इन डिटेल सीखोगे कि राइट अलोकेशन कैसे किया जाता है, अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाता है. राइट, वहां पे आप सीखोगे इन डिटेल. अभी खाली इतना समझ लेना कि डायरेक्ट कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रोडक्शन, राइट डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड रहेगी, वो ट्रेस की जाएगी. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एग्जैक्टली उल्टी रहेगी. बट ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट में आ जाएगा, जो हम कस्टमर से रिकवर करेंगे. समझ में आ रहा है? आगे देन the economic importance of this cost is that even though not directly traceable to the product, may bear some functional relationship to the production and may vary with the output in some definite way. Direct cost directly change होगी output के साथ, but indirect cost directly नहीं होगी, but कुछ relation में तो change होगी. Examples of such cost are electricity power, common cost incurred for general operations of the business, benefiting all the products jointly. जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड है बाहर, फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी जो सर्विस है दैट बेनिफिट्स ऑल द आउटपुट, इट बेनिफिट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द प्रोसेसेस. एग्जांपल, जो आपने ऑयल लाके रखा है बैरल्स में, वो ऑयल हर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, कॉमन कॉस्ट है. इट बेनिफिट्स ऑल द आउटपुट्स. समझ में आ रहा है? तो हम उस कॉस्ट को सब आउटपुट से डिवाइड करेंगे एंड वी विल से कि दिस इज पर यूनिट इतना कॉस्ट है. आगे incremental cost or sunk cost. Theoretically, incremental costs are related to the concept of marginal cost, additional cost. Incremental cost refers to additional cost. It is additional cost, right, incurred. Additional cost incurred by the firm as a result of business decision. If you decide to take any decision, उस decision की वजह से आपकी cost कितने से increase होने वाली है, that change in the cost is incremental cost. For example, incremental cost will have to be incurred by the firm when it makes a decision to change the product line. अब बोलते हम कोई नया product line start करेंगे. Example, Reliance started with the Jio. So जब उन्होंने Jio start किया था, incurred a heavy incremental cost. उन्होंने पूरी product line change की and उसके लिए जो cost डाली वो incremental cost हो गई. तब वो incremental cost हो गई. आज वो sunk cost हो चुके हैं. जब उनको decision लेनी थी
तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट थी। ठीक है, आगे अगर आज वो बोलते हैं हमें राइट कुछ अलग सेक्टर में आना है, तो उसके लिए उनको जो कॉस्ट करनी पड़ेगी वो होगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। 4-5 साल के बाद वो संक कॉस्ट हो जाएगी, मतलब जैसे वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी दैट विल बिकम संक कॉस्ट। आगे वन एक बार इंकर की तो संक कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है उन्होंने, या एग्जांपल दूसरा, आपके पास एक मशीन है एंड आपको रिप्लेस करना है, वो रिप्लेसमेंट के लिए यू हैव टू पे 10 लाख। एक मशीन है एग्जिस्टिंग, एक एग्जिस्टिंग मशीन है, आप उसको डिसमेंटल करोगे, डिसमेंटलिंग करने के लिए एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए लगे। ठीक है, फिर आप इसको स्क्रैप में निकालोगे, वहां से 50,000 मिले, तो नेट कॉस्ट कितनी होगी आपकी 50। डिसमेंटलिंग करने की कॉस्ट 1 लाख, उसको स्क्रैप में निकालने की कॉस्ट 50, तो नेट एक्सपेंस इज 50,000। योर नेट एक्सपेंस इज 50,000 प्लस आपने नई मशीन परचेस की 10 लाख की, प्लस उसको आपने इंस्टॉल वगैरह किया, उसके लिए 50,000 लगे। ठीक है, सो नई मशीन 10 लाख 50,000 प्लस डिसमेंटलिंग वगैरह एवरीथिंग, सो दिस इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नई असेट लगाने के लिए यू हैव टू एडिशनली इंकर 11 lakhs, एडिशनली इंकर 11 lakhs। नई मशीन लगाने के लिए you are supposed to incur 11 lakhs extra. This will be called as replacement cost or incremental cost. Replacement cost भी आप उसको बोल सकते हो, आगे लिखा है देखो, राइट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलो या इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलो, इट इज वन एंड द सेम। सो अगर आपको कोई डिसीजन लेनी है, वो डिसीजन के लिए क्या कॉस्ट लगेगी, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आगे एग्जांपल, आज आप बोलते हो हमें सीए नहीं, हमें कुछ अलग करना है, हमें आर्किटेक्ट में जाना है, तो आर्किटेक्ट में जाने के लिए आपको कोई कॉस्ट लगेगी, लाइक आप वहां पे ट्यूशंस लगाओगे वगैरह वगैरह, दैट बिकम्स योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एंड सीए की जो ट्यूशन फीस पे की, दैट विल बिकम सम कॉस्ट, दैट हैज बिकम सम कॉस्ट। जैसे आप एक बार पेड कर दी तो सम कॉस्ट हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयरफॉर इंक्रीमेंटल इज एक्सपेक्टेड एडिशनल कॉस्ट, एंड जब आप वो इंकर करोगे दैट विल बिकम सम कॉस्ट। देन देखो उन्होंने एग्जांपल्स दिए, क्या एग्जांपल दिए, to change the product line, replace the worn out machinery, buy the new production facility, acquire new set of clients। आप नए clients ढूंढ रहे हो एंड उसके लिए आप एडवर्टाइज कर रहे हो, क्लाइंट एक्सपेंसेस कर रहे हो, मतलब इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आप उनकी मीटिंग रखते हो, राइट, उनको उनके इधर जाते हो, वहां पे आप अप्रेस करते हो आपके प्रोडक्ट्स, राइट, एडवर्टाइज करते हो, दैट विल बिकम एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एग्जिस्टिंग से अलग कुछ। ठीक है, sunk costs refer to those costs which are already incurred once, they have already incurred for once and for all and cannot be recovered, it cannot be recovered, they are based on past commitments and cannot be revised or reversed if the firm wishes to do so। once you incur the expense it becomes sunk cost, आप चाह के भी निकाल नहीं सकते फिर से। Examples of sunk cost are the expenses on advertising। आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी है, एक बार एडवर्टाइजमेंट की, उसके पैसा गया तो गया, फिर से आएगा क्या नहीं। R&D, फिर वो R&D सक्सेसफुल हो या ना हो कोई पता नहीं, एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल हो या ना हो पता नहीं, you are incurred for once and all, right। Specialized equipments, fixed facilities such as railway lines वगैरह, आप पुणे में किर्लोस्कर वगैरह आपको पता होगा, उनके अलग से रेलवे लाइंस है, now incurred the railway lines, अगर उसका यूज हो या ना हो, the cost has already incurred। समझ में आ रहा है? so that is the sunk cost। आगे sunk cost acts as an important barrier, इसको अंडरलाइन करके रखना, sunk cost acts as an important barrier to the entry of the firms into business। एग्जाम्पल ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया ने जो कॉस्ट इंकर की थी, हेवी कॉस्ट, वो कॉलिंग वगैरह उस पे पैसे कमा रहे थे, टेक्स्ट एंड कॉलिंग वगैरह इस पे। जियो ने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज दे जियो पीछे रह जाता, फिर जियो का क्या हो जाता कि उन्होंने संक कॉस्ट इंकर किए, अगर उसी बिजनेस में अगर जियो को एंटर करना होता तो दे हैव टू इंकर ए ह्यूज कॉस्ट एंड उतना रेवेन्यू नहीं मिलता, तो उन्होंने एक अलग बिजनेस लाइन स्टार्ट की, उन्होंने डेटा में एंट्री की और इन कॉलिंग वगैरह फ्री कर दिया, टेक्स्ट एंड कॉलिंग फ्री कर दिया, तो दे इंकर एडिशनल कॉस्ट and later on that become sunk cost। जैसे जियो ने स्टार्ट किया, जियो had done a proper planning and everything,
उनका बहुत सालों से काम चल रहा था, एंड उन्होंने जब वो कॉस्ट इंकर की, that become their sunk cost and it became entry barrier to Airtel and everything. पहले एयरटेल वगैरह इन लोगों ने जो खर्चा किया है वो जियो के लिए बैरियर था इन लाइक अर्निंग रेवेन्यू थ्रू कॉलिंग एंड टेक्स्ट मैसेजेस. तो उन्होंने एक अलग कॉस्टिंग करके, एडिशनल कॉस्टिंग करके कुछ अलग किया, which become their sunk cost and that become barrier for others. समझ में आ रहा है? अगर किसी ने उसमें हेवी एक्सपेंडिचर किया होगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू एंटर इनटू बिजनेस. So sunk cost is barrier to the entry. हम बोलते हैं ना, there are barriers to entry. Monopolist like monopoly firms के केस में, monopoly market में barriers to entry होता है because monopoly firm incurs sunk cost. Are you getting my point? उन्होंने इतनी cost heavy incur की होती है कि उस लाइन में आप नहीं आ सकते, या it becomes very difficult to challenge. आपको भी उतनी cost डालनी पड़ेगी फिर तो उनके पार आने के लिए, बट आपके तब तक रेवेन्यू नहीं होते, खाली आप कॉस्ट इंकर कर रहे हो. सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट. देन हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट. बहुत सिंपल है. हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ ओल्ड पास्ट कॉस्ट. आपने एक मशीन परचेस की थी, सपोज यही एग्जांपल है, यू आर परचेस दिस मशीन फॉर 8 लाख. आपने 10 साल पहले 8 लाख में परचेस की थी. 10 साल पहले 8 लाख में परचेस की थी. टुडे यू वांट टू रिप्लेस इट बिकॉज इट हैज बॉर्न आउट. आपको रिप्लेस करना है. सो 8 लाख की कॉस्ट बिकम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट. एसेट की एक्चुअल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे आपने परचेस किया था, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, हिस्ट्री वाली कॉस्ट. टुडे यू वांट टू डिसमेंटल इट, राइट? आप उसको डिसमेंटल करने वाले, उसके 1 लाख लगने वाले. डिसमेंटल करने के 1 लाख, फिर स्क्रैप सेल करोगे, उससे 50,000 मिलेंगे. सो नेट डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 50,000. नई असेट 10 लाख की है, 50,000 is उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टोटल 10 लाख 50. दिस इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 8 लाख, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 11 लाख. अगर उसी एसेट को रिप्लेस करने जाते हो, एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस करने जाते हो, तो कितना खर्चा लगेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलर एसेट रिप्लेस करते हैं या एडवांस एसेट रिप्लेस करते हैं एग्जिस्टिंग एसेट को, तो उसके लिए जो खर्चा लगेगा दैट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट को संक कॉस्ट बोल सकते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट को आप संक कॉस्ट बोल सकते हो बिकॉज यू हैव इंकर्ड इट. और आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लाइक इंक्रीमेंटल कॉस्ट की तरफ देख सकते हो, राइट? सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसेट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट यू ऑलरेडी इंकर्ड इन द पास्ट फॉर दैट एसेट. अगर रिप्लेस करने जाते हो तो क्या रहेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So, historical cost refers to the cost incurred in the past on the acquisition of the productive assets such as machinery, building, etc. Depreciation हम उसको original cost बोलते थे. Depreciation में उसको original cost बोलते थे. Replacement cost is the money expenditure that has to be incurred for replacing the old asset. अगर old asset को replace करना है तो कितना खर्चा लगेगा? That is replacement cost. Right? इन दोनों में difference क्यों होता है? Because inflation. Prices when I purchase the old asset and prices when I will purchase the new asset are not same. So instability in the prices creates difference in the historical cost and replacement cost. तो इसको अंडरलाइन करके रखना. Instability in the prices makes these two costs different. यहाँ पे important क्या है? Sunk cost acts as a barrier to the entry. And दूसरा important point है instability of the prices, instability in the prices create difference between historical cost and sunk cost. Historical cost and replacement cost. Other things remaining the same, increase in the prices will make replacement cost higher than the historical cost. Generally price levels increase होती है and therefore अगर आज आप मशीन परचेस करते हो, आपको ज्यादा पे बाय करना होगा देन आपने जो 8 साल पहले परचेस की थी. आपने एक एक्टिवा परचेस की थी 4-5 साल पहले 60,000 में, वही एक्टिवा अगर आज मार्केट में ले जाते हो इट इज फॉर 80,000. व्हाई इट इज इंक्रीज? बिकॉज द प्राइस, जनरल प्राइस लेवल हैज इंक्रीज, कॉस्ट लेवल इज इंक्रीज, इन्फ्लेशन, राइट? सो इफ प्राइस लेवल इंक्रीजेस, जनरली फ्यूचर प्राइसेस विल बी मोर देन द करंट प्राइसेस. आज की करंट प्राइस फ्यूचर में हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगी, आज की करंट प्राइस फ्यूचर में हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगी. एंड इफ यू कंपेयर विद एट दैट पॉइंट प्राइस,
वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहेगी, दैट विल बी मोर. सो इफ प्राइजेस इंक्रीजेस, replacement cost will be more than historical cost. If prices decreases, replacement cost will be less than historical cost. ठीक है? Then next, another important is the private cost versus social cost. Private cost versus social cost. The difference between private cost versus social cost. Private cost is a cost incurred from the point of view of a individual firm. मेरा बिजनेस है तो मेरी कितनी कॉस्ट है? इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल फर्म इज ए प्राइवेट कॉस्ट. जब भी हम एक इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो कॉस्ट रहती है इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसको प्राइवेट कॉस्ट बोला जाएगा. सोशल कॉस्ट इज ए कॉस्ट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब मैं प्राइवेट कॉस्ट बोलता हूं तो मैं अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा हूं. फॉर ए गिवन firm also incurs external cost, like firm is using the resources, free resources of the society. We are using the infrastructure available in the society. We are using the environment, atmosphere, water, rivers. These are the external costs for which we do not pay. So private cost is the accounting cost plus implicit cost. They are related to the firm. So प्राइवेट कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फर्म भी बोल सकते हो. इट इज रिलेटेड टू, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से. प्राइवेट कॉस्ट आर इंटरनल कॉस्ट. फर्म की इंटरनल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट. फर्म ऑल्सो इंकर्स एक्सपेंसेस, लाइक दे मे क्रिएट द पोल्यूशन. डिसयूटिलिटी भी, खाली यूटिलिटी नहीं क्रिएट करते, डिसयूटिलिटी भी क्रिएट करते. ऑल द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. They are using the free gifts of the nature. रोड्स यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर यूज कर रहे हैं. उसके लिए वो पेमेंट नहीं करते, ना ही वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज दीज आर नॉट ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इंटरप्रेन्योर जो ओन करता है उसकी कॉस्ट है. तो सोसाइटी में आप जो काम कर रहे हो, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, जो सर्विसेज दे रहे हो, that also involves the cost. Are you getting my point? That cost is external to the business. So private cost is internal, and उसके beyond जो cost होती है उसको external cost बोला जाता है. And social cost is internal cost, that is private cost plus external cost. So लिख लेना ये formula, लिखो everyone. Private cost versus social cost. Private cost is accounting cost of a business plus opportunity cost. That is explicit cost प्लस इम्प्लिसिट, जिसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं. It is internal, also called as private cost is also called as internal cost, because it is within organization के within की जो cost है, internal cost. Social cost is private cost plus external cost. External cost incurred or created by the enterprise business, जो business consider नहीं करता, right? External cost. इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं. So जो इंडस्ट्रीज है वो उनका पूरा गार्बेज रिवर्स में छोड़ देते हैं. That pollution created is external. They don't consider it. Are you getting my point? That is external, but that creates social cost. So external cost.
उसके वजह से बहुत सारे डिसीजेस होंगे, वो कहाँ पे भी नहीं आता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक्सटर्नल कॉस्ट. सो सोशल कॉस्ट is internal cost plus external cost. It is from the point of view society. Business do create some social benefits, but they also incur social cost, which business do not consider. Are you getting my point? And therefore, if we also consider external cost incurred by the businesses, we will say it is a social cost. So social cost is a broader concept than the private cost. Are you getting my point? So that is, देखो क्या लिखा है उन्होंने. Private cost are the cost actually incurred or provided by the firm and are either explicit or implicit. ठीक है? They normally figure in the business decisions. Business consider internal cost, private cost in their decision making, as they form the part of total cost and are internalized by the firm. They are internal to the firm. Internal to the firm. Social cost, on other hand, refers to the total cost borne by the society. Private cost is from the point of view of a firm. Social cost is from the point of view of society. क्या लिखा है देखो. Social cost, on the other hand, refers to the total cost borne, incurred by the society on account of business activity. हमारा बिजनेस काम कर रहा है, उसके वजह से सोसाइटी भी कुछ कॉस्ट इंकर करती है, and includes private cost and external cost. It includes the cost of the resources for which the firm is not required to pay, right? Such as atmosphere, rivers, roadways, etc., etc. And the cost in the terms of disutility created, such as air, water, environment, pollution. So that cost should be also considered, but businesses do not consider. They are external to the business. Internal to the business, private cost, plus external to the business makes social cost. Are you getting my point? So these are the difference between, these are the various types of the cost, nothing else. ठीक है? ऐसे मत बोलना कि अकाउंटिंग कॉस्ट और आउटले कॉस्ट अलग अलग है. दे मे बी सेम. हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. ठीक है? जब मैं टाइप्स ऑफ द कॉस्ट बोल रहा हूं तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग नजरिया से देख रहा हूं, इसलिए मैं उनको ऐसे बाइफरकेट कर रहा हूं. ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट, outlay cost versus opportunity cost. Whenever you choose any option, whenever you face in your life any, that you have to choose one of the alternatives, you will be incurring opportunity cost. ठीक है? And your decision will be dependent on the opportunity cost. Direct or indirect cost, traceable or non-traceable cost, incremental cost versus sunk cost. Incremental cost that you are planning to incur, sunk cost that you are already incurred. Sunk costs are the barriers to the entry. Sunk costs are the barriers to, once upon a time incremental cost if incurred will become sunk cost, obviously बनेंगे. ठीक है? Then historical cost versus replacement cost. जो हमारे पास assets है, productive assets है, उनके actual cost when we purchase is a historical cost. अगर आप आज उनको replace करने जाते हैं, the cost required to replace them is replacement cost. Generally, if the prices are increasing, replacement cost will be more than historical cost. If the prices are decreasing, replacement cost will be less than historical cost, right? Instability in the prices create the difference between historical cost and replacement cost. Private cost versus social cost. Private cost is internal to the firm. It includes accounting cost and opportunity cost. It is from the point of view of a firm. Firm, while doing the business, also incurs some of the external costs which they actually do not pay and they do not record. They are external to them, like disutility created by them. They are using the free gifts of the society, gifts free of cost. That cost is external to the business. If I also consider that,
it becomes private cost plus external cost. Private cost is also called as internal cost. Internal plus external cost is your social cost. These are the types. And then comes fixed and variable cost. Then economies and diseconomies. ये मैंने बोला था ना कॉस्ट के बाद लूंगा बिकॉज वो इनमें है सबसे. ठीक है, आई थिंक आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ. ठीक है, मुझे जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा ध्यान देना. आई विल बी कवरिंग बिकॉज फिक्स एंड वेरिएबल तो हमारा मेन है, उस पर हमारे पूरे चैप्टर्स डिपेंड है. तो फिक्स एंड वेरिएबल का मैं सब इन डिटेल में ले लूंगा. टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के मीनिंग, वेरिएबल कॉस्ट के मीनिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, एवरीथिंग आई विल टेक. सो कल का लेक्चर 2 आवर्स मिनिमम रहेगा. ठीक है, तो हम वो पूरा लेंगे. अभी वो टाइम भी कम पड़ेगा, वो लिंक मेंटेन नहीं होगी. सो ऑन दिस नोट आई कैन एंड. सो जो भी किया है मैंने अभी तक, ये सब थ्योरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए मैं मॉड्यूल रेफर करता हूँ. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट. सो जो मैं हाईलाइट करता हूँ वो आप हाईलाइट करते जाओ आपके मॉड्यूल में. It is always advisable to also have module with you whenever I teach, because I do refer the module. ठीक है, so that is always advisable. ठीक है, तो अब आके रुके फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. एंड देन वी विल बी लर्निंग शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, एंड ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा. ठीक है, टेंटेटिवली 4 more lectures and this chapter is over. 2 लेक्चर्स आप, एक लेक्चर फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल के लिए समझने के लिए, राइट, एक लेक्चर शॉर्ट टर्म के लिए, एक लेक्चर लॉन्ग रन के लिए, एंड फिर एक नॉर्मल आगे पीछे हो जाएगा तो एक एडिशनल लेक्चर. तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम कॉस्ट फंक्शंस भी हमारे हो जाएंगे. ठीक है, ओके. सो आपका लॉ रहेगा लेक्चर, अभी लॉ लेक्चर रहेगा मेरा तो 5:45 को account से 5:45 to 8:15. I will be starting with the BRS today. Then BRS will take me not more than 10 days, 10 working days, and then rectification will take another 10 days. So I am planning कि 15th August तक ये दोनों chapters खत्म हो जाए. Then we have 3 chapters remaining. एक है आपका NPO, जो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा. फिर है सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, एंड देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये 3 चैप्टर्स बाकी रहेंगे. एंड फिर मैं जो पहले कंसेप्ट्स वगैरह है वो मैं, राइट, वो एक हफ्ता पकड़ के चलो. सो बाय द एंड ऑफ सितंबर पूरा सिलेबस इन डिटेल कवर हो जाएगा. सितंबर की लास्ट वीक में हो जाएगा. ठीक है, बट जो चैप्टर्स है दे आर सिंपल चैप्टर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, ऑब्वियसली आई विल बी कवरिंग इन डिटेल, बट एक मैं आपको शेड्यूल बोल रहा हूँ. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे, सॉरी बीआरएस स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, फिर एनपीओ के लिए जाएंगे, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे, और फिर सबसे एंड में सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट. ठीक है, ऐसे. ठीक है, चलो थैंक यू. लॉ का भी आपके नॉर्मल टाइमिंग ना 1:30. यूज इन बिटवीन टाइम टू रिवाइज द थिंग्स. यू आर स्टडिंग एट होम ओनली, आप वहां पे ही पढ़ रहे हो, वहां पे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो. देयर इज नो बिग डील. आपको इधर उधर मूव भी नहीं करना है. सो पढ़ते रहो. ठीक है, थैंक यू.